let us get back to our revision. So, in the revision series, today I'm going to take the very first chapter from the second book, that is Challenges to Nation Building. Though the chapter is very small, but of course, when the questions are there, when we talk about the questions in the past few years, what I have always seen is हमारा जो second book है, it has always carried more weightage. So this particular chapter starts with the politics of Indian independent India. So when let us now go to the backdrop of the story, that is before 1947 we were already with what we call as today Bangladesh and of course हमारा जो है Pakistan. But if we look into the historical facts, we come to know that there was a two nation theory which was proposed by the Muslim League, and that was one of the very important एरिया जो हमारा इंडिपेंडेंस के बाद हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना था. So when it was decided that India is going to be independent, Pandit Nehru had called up his members of Constituent Assembly. और ये आपका I remember 2015-16 वाला जो प्री बोर्ड था एंड बोर्ड था, दोनों में क्वेश्चन थे. मतलब प्री बोर्ड जो स्कूल का था उसका एंड बोर्ड में ये क्वेश्चन था कि where he had addressed and the name of the speech, Tryst with Destiny. That speech itself had many facts. अगर हम उस स्पीच को सुनते हैं, it is there, the audio recording is there. तो जो अगर हम उस स्पीच को सुनते हैं तो we come to know the vision of Pandit Jawaharlal Nehru towards the future India. So at the midnight when India attained its independence, we had very difficult circumstances in front of it. हमारे लिए freedom was not a boon. Freedom did not come free. It came with a very heavy price. पेपर में आया है. It came with a very heavy price. Why? Because freedom was granted to us along with the partition. Freedom तो आया, लेकिन India was partitioned into India and Pakistan with the two nation theory. And that was which refer to many circumstances, challenges जो आगे आ सकती थी. So when we got the freedom, we had three challenges in front of us. अब आपका ये पेपर में जो है, this is a 2-marker question, you can say what were the three challenges. अगर यही question आपका जो है, it is coming for 4 marks, then you have to also explain it. So the very first challenge was to shape a nation which was united. हम वैसे तो यूनाइटेड हैं, हम अपने आप को इंडियन कहते हैं, लेकिन अगर हम अपने रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, कल्चर इनको देखते हैं तो इट वाज डाइवर्स. एंड एवरी region, every state had its own expectation from the independence. So it was very difficult कि उस पूरे एक नेशन को एक नया शेप दिया जाए जहां the aspiration of each and every person is counted. Secondly, even in 1930, Motilal Nehru had already envisaged a democratic nation. A nation which was based on equality, rights, universal adult franchise. तो हमारे लिए था कि सेकेंड वॉज डेमोक्रेसी, बट डेमोक्रेसी का जो मीनिंग है वो है पीपल्स गवर्नमेंट.
तो पीपल्स गवर्नमेंट मतलब उन पीपल को पहले समझना तो पड़ेगा। आज की डे में अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर ये बोलता है तो इट्स इजी, बट एट दैट टाइम व्हेन वी वर नॉट इवन citizens, we were not having any rights, we were not belonging to any one state, जहां आपके स्टेट्स अलग थे या फिर बहुत सारे स्टेट्स मिलकर थे, वहां पर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करना वाज इटसेल्फ अ वेरी herculean task. To conduct an election for a country which had 40% people only as literate, कैसे करोगे? How would you make them understand? And third, development. And the development was not only in the field of what we say counting on the finger, but it was for everything. हमें एग्रीकल्चर डेवलप करना था तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी करना था, हमें इंडस्ट्रीज भी डेवलप करनी थी, हमें एजुकेशन सेक्टर भी डेवलप करना था, हमें हेल्थ भी करना था. देयर वाज अ very big task of development and of course the welfare of the society, not some section. Why? Because at that particular time India was a staunch supporter of casteism. तो कैसे हर एक कास्ट को आप इंक्लूड करोगे? हमने नेशनल मूवमेंट के अंदर इन द ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, अगर आपको थोड़ा सा 10th याद हो तो आप थोड़ा सा बैकड्रॉप बैक जाइए. गांधी जी हैड ट्राइड टू मोबिलाइज द सपोर्ट ऑफ दलित्स. उसके लिए उन्होंने हायर ब्राह्मण क्लास को मनाने की कोशिश की थी. ही हैड ट्राइड टू मोबिलाइज द रिच, उसके लिए द पुअर, उसके लिए उन्होंने रिच को मनाने की कोशिश की थी. एंड अंडर डिफरेंट what we call as agreements, Pune Pact, B.R. Ambedkar एंड डॉक्टर अंबेडकर आगे, गांधी जी आगे आए थे. तो कैसे आप सभी सेक्शंस को करोगे? ये सारा एक प्लान करना एक बहुत बड़ा टास्क था. So that is why these three are called as challenges. Now, as I said in the very beginning, that independence came with partition. हमारे लिए it was partition. And partition was a very difficult process. It posed many challenges. क्या थे वो process and challenges? First, ये पेपर में 1 marker question है कि who proposed the two nation theory, या फिर under which theory was India divided into 2 areas. So the Muslim League had proposed this theory, India and Pakistan. And 1931 में ही सर मोहम्मद इकबाल जो है उन्होंने इस बात का हिंट किया था in the session that they wanted a separate electorate. उनको बिल्कुल अलग जगह चाहिए थी where they had complete control. और वही बात जो है आपकी जा रही थी, आगे जा रही थी, and that only came up as creation of India and Pakistan. अब पाकिस्तान कौन सी जगह होगी? You can watch, अभी एक नया सीरियल है, I have not watched the complete, but 1 or 2 episodes I think I got it. Freedom at Midnight. In that you can see this two nation theory वाला जो है ना वो मतलब है उसके अंदर. तो कौन सा एरिया होगा भाई? Because there was no single belt of Muslim majority or areas in British India. यहीं पर मुस्लिम रहते हैं, वहां मुस्लिम रहते तो वहां हिंदू भी रहते थे. तो then which areas should be defined as Pakistan? Like in east हमारा जो है बांग्लादेश वाला एरिया था, एंड इन द वेस्ट आपका अमृतसर लाहौर वाला एरिया था जहां आपके जो है पंजाब आपके मुस्लिम्स रहते थे. और ऐसा नहीं है कि वो वहीं पे रहते थे. यू हैव द एरियाज लाइक मीरठ, मोदी नगर, लखनऊ जहां आपकी मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, हैदराबाद. नो डाउट हैदराबाद वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम,
तो कैसे आप इनको एक करोगे? एंड वहां पर जो लोग माइनॉरिटीज में रह जाएंगे, दोज हु विल रिमेन एज माइनॉरिटी, उनको आप क्या करोगे? लाइक पंजाब के अंदर जो एरियाज आपके पार्टीशन हुए थे, डिमार्क हुआ था एज पाकिस्तान, तो वहां पर आपके बाकी लोग भी तो रहते थे, नॉन मुस्लिम्स वर आल्सो देयर, आप उनको कैसे टैकल करोगे? एंड देन देयर वर पीपल लाइक अब्दुल गफार खान, who was a staunch follower of Mahatma Gandhi, who did not want Pakistan to be created. He was the leader of the frontier, Gandhi उनको बोलते हैं. लेकिन then Pakistan was created. दोनों तरफ, चाहे यहां पर पंडित नेहरू थे या वहां पर आपके उनके प्राइम मिनिस्टर थे, दोनों ने एक बात बहुत ओपनली कही थी, दैट the people are free to follow their religion. They would not be given any kind of, उनको कोई suppression नहीं होगा, and they are also free to join their countries as they wish. But it was not so easy. कहने में और करने में there is lots of difference. वहां पे मोहम्मद अली जिन्ना जी और यहां पर पंडित नेहरू, दोनों ने इस बात को कहा था कि those who are going to live here as minorities, they would be equally given rights. But was it practically possible? वो भी एक क्वेश्चन था. So these were the process. Many of the people had to leave their places. Maybe it was not days, even hours में उनको बोला जाता था. There were camps everywhere जहां पर उनका जो मार्क किया गया था, and they sometimes it is said that even forcibly they were asked to move. उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था. Many of the people जो है they had parted away from their families. They had to leave all their belongings, their property. और यहां तक कि इट इज ऑल्सो सेट कि जो पार्टीशन में जब पार्टीशन हुआ तो रेलवे स्टेशन का आधा हिस्सा, कमरे का हिस्सा, टाइपराइटर का हिस्सा, सामान का हिस्सा, एवरीथिंग वाज पार्टीशन. क्योंकि जब लाइन खींची तो इस लाइन के इस तरफ जो चीज थी वो उनकी थी, जो इधर थी वो हमारी थी. इनफैक्ट देयर इज वन स्टोरी, मतलब बहुत ही अच्छी सद्दत हसन की स्टोरी है जो हमारे आगे बीए में है, कि देयर वाज वन डॉग, और वो जो डॉग था, कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो एरिया में लोग थे उनको लगा दैट इट वाज देयर्स, एंड उन लोगों ने उसको खाना वाना खिलाया. बाद में इट क्रॉस्ड इंडियन, और इंडियंस को लगा वो उनका है. लेटर ऑन व्हेन दे सॉ दैट इट वाज क्रॉसिंग द बॉर्डर, दे इवन किल द डॉग. मतलब इतना, इतनी नफरत थी लोगों में, इतना गुस्सा भरा हुआ था. इट इज सेड देयर वर पीपल जिनको, जो मतलब कि इतने शॉक हो गए थे कि दे इवन डिड नॉट नो वेदर दे आर इन इंडिया और पाकिस्तान. Nobody knew what would be their fate. So what was the consequences of partition? सबसे पहले तो it is said partition created large displacement. More than lakhs of people, 10 lakh people जो हैं, they had to leave their places at 11th hour. There was mass violence, rape, murder. मतलब ऐसी कोई भी, मतलब हम नहीं बोल सकते क्राइम जो उस वक्त नहीं हुआ था at the borders, at the area. Then when India became independent, 1947, we were all celebrating our independence here. लेकिन उससे पहले, as I said, मैंने कहा ना भी, आप अगर if you want you can read the book also. It is actually based on a book, Freedom at Midnight. So even before this partition and independence, Kolkata was
कलकत्ता उस वक्त में जो है इट वाज विटनेसिंग वायलेंस, एंड वो जो वायलेंस था दैट हैड बीन टू मच। और महात्मा गांधी वहां पर गए थे टू कूल ऑफ इंडियन, मतलब कि वी वर सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस, ही वाज देयर, और उनके कहने पर, उनके अर्ज करने पर द वायलेंस हैड silenced. But of course, there were people within India, जो हम भी जानते हैं नथुराम गोडसे, who believed, because I don't know the theory, so I won't be using any fact here, who believed that the partition could have been stopped. There were allegations against Mahatma Gandhi, and finally he was assassinated on 30th January 1948 while he was going for his prayer. Now, महात्मा गांधी का जो assassination था, that brought a standstill to the violence. It was like a magical event. पता नहीं, लोग डर गए थे, समझ गए थे, लेकिन वायलेंस आपका अब्रप्टली बंद हो गया। अब हमारे पास था नेक्स्ट कि भाई हमें प्रिंसली स्टेट्स का क्या करना है। द ब्रिटिश जो है दे हैड द पॉलिसी, उनका पॉलिसी था प्रिंसली स्टेट्स को ज्वाइन पाकिस्तान, हिंदुस्तान, और दे कैन रिमेन फ्री, दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। ये पॉलिसी वाज हमारे लिए बहुत कॉस्टली पड़ रहा था, सिंस देयर वर मेनी पार्ट्स जो इंडिया के अंदर या इंडिया को एनेक्स कर रहा था, एंड हम लोग जो है विदाउट द परमिशन ऑफ द पीपल ओवर देयर वी कुड डू नथिंग देयर। हम कैसे करें, हाउ टू? दिस इज बिकॉज कश्मीर अगर हम देखते हैं तो कश्मीर के लिए हमारा प्रॉब्लम था हरि सिंह, हु वांटेड कश्मीर टू बी इंडिपेंडेंट। जूनागढ़, which had signed its annexion with Pakistan. Travancore, those the king wanted independence. Manipur and Nizam of Hyderabad. अब इसमें से अगर हम हैदराबाद देखते हैं, ट्रावनकोर देखते हैं, तो दे आर ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, उसको आप अलग करके कहीं डाल नहीं सकते हो, दे आर इनसाइड। कश्मीर ऊपर है, वो पोर्शन को हम एक, मतलब कि एक पर्सन के लिए हम कह सकते हैं ओके, वो एक, लेकिन इंटरनली कैसे आप करोगे? एंड हेयर केम द रोल ऑफ द हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार पटेल। Sardar Patel always had envisioned that India should be united. So with his democratic and diplomatic skills, he spoke to मणिपुर जो बोधराज सिंह है, उनसे बात हुई उनकी। Then it was annexed. For Hyderabad, exactly, it was not only the role of government, it was also that कि वहां पर जो थे the people were already, they were troubled by निजाम। निजाम के जो लोग होते थे they used to suppress the people in Hyderabad. So the people did not want any, they did not want to be annexed to Hyderabad. और उस वक्त में इंडियन गवर्नमेंट हैड सेंट इट्स आर्मी ओवर देयर, एंड दैट वाज विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट दैट निजाम को जो है एग्जीक्यूट करके हैदराबाद वाज एनेक्स टू इंडिया, पार्ट ऑफ नाउ इंडिया। सिमिलरली मणिपुर, इवन दो देयर वर अदर प्रॉब्लम्स, लेकिन उसके बाद वहां पर द असेंबली इलेक्शंस वर ऑल हेल्ड। तो इट वाज ऑल द रोल ऑफ पटेल। इनफैक्ट अगर हम गुजरात वाला एरिया देखते हैं तो इट इज सेड दैट गुजरात वाज मतलब कि इट कंस्टिट्यूटेड ऑफ मोर देन 552 स्मॉल स्टेट्स। मतलब यहाँ पर डोंट टेक इट एज द स्टेट व्हाट वी आर हैविंग, छोटे छोटे आपके जो उस वक्त में होते थे, बट येट इट वाज हिज रोल दैट गुजरात एक हुआ।
लेकिन गुजरात इतने आसानी से एक नहीं हुआ था। नेक्स्ट हमारा आया, चलो ये तो हमारा हो गया इमीडिएटली, इंडिया हैड टू फेस इनफिल्ट्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान, दैट वाज द रीजन कि जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा बना। दैट वाज अ टाइम व्हेन इंडिया हैड पुट द प्रेशर ऑन हरी सिंह that it would always be in their benefit if Kashmir is part of a larger subcontinent India, क्योंकि तब ट्राइबल्स जो हैं वो कश्मीर के अंदर घुस गए थे। दैट वाज इन द वेरी अर्ली 1947 में ही ऐसा हुआ था, अक्टूबर में। एंड आर्टिकल 373, even though it was imposed, but Kashmir anyway became part of India. तो ये तो वो एरियाज थे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, इंडियन मेन के साथ आना नहीं चाहते थे, लेकिन जो आ चुके थे उनमें भी प्रॉब्लम्स थी। ब्रिटिश जो हमारा इंडिया था दैट वाज प्रोविंशियल, वी नेवर हैड द स्टेट पॉलिसी। वहां ईदर देवर प्रोविंशियल स्टेट्स और प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली आपके वही हैं जो अभी हमने पढ़े हैं, प्लस देवर अदर, लेकिन वो लोग जो है अपने आप ही इंडिया का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन जो प्रोविंशियल था दैट वाज अ लार्जर एरिया। लाइक अगर हम लोग पंजाब का प्रोविंस कहते हैं तो पंजाब अलग पंजाब नहीं था उस वक्त का। पंजाब का मतलब पंजाब आपका, सिंध आपका, हिमाचल आपका, मतलब वो सारे एरियाज जो अभी अलग अलग स्टेट्स हैं वो सारे ही थे। देन इफ यू टॉक अबाउट द सेंट्रल, तो सेंट्रल के अंदर आपके पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र भी था, मध्य प्रदेश भी था, छत्तीसगढ़ भी था। एंड इफ यू टॉक अबाउट बॉम्बे प्रोविंस, तो बॉम्बे आपका गुजरात, बॉम्बे, विदर्भा एंड सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। आप अभी भी वहां पे जाओगे ना तो आपको वो चीजें समझ आएंगी इफ यू आर देयर। If we talk about Madras province, which was a very large province, it comprised of today's Andhra, Telangana, Tamil Nadu, parts of Kerala, Karnataka, सारे कुछ आपके तब उसमें आते थे। तो ये तो आपका वो तो था, आपके जो स्टेट्स नहीं थे उनको हमारे साथ आना था, लेकिन जो स्टेट्स ऑलरेडी हमारे साथ आ चुके थे उनको कैसे डील करें? बिकॉज पीपल्स एस्पिरेशन वॉज डेमोक्रेसी। People's aspiration was not only political rights, but it was also to recognize their rights. कैसे किया जाए? And very soon, 52 में, a movement started in Andhra, Vishal Andhra movement. Vishal Andhra movement, which was initiated by Putti Sriramulu. Now this turned violent because he had gone to fast unto death, और उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हो गई तो दैट बिकेम वायलेंट। एंड इनका जो मेन डिमांड था दैट वाज कि जो आंध्रा तेलुगु स्पीकिंग कम्युनिटी है उनको अलग कर दिया जाए। एज आई सेड दैट द मेन प्रॉब्लम वाज कि तमिलनाडु जो आपका मेड्रास प्रोविंस है दैट वाज ऑल एरिया। देन इन 1952 itself आंध्रा को कार्व आउट किया गया था। मतलब उस वक्त देयर वाज नो सिस्टम, इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ दिस वायलेंस दैट इट हैड टू बी डन। ये इसीलिए किया गया था। अब the government felt that such movements can hamper the development. So they wanted a proper reorganization to be done because they did not want one more. और ऐसी एक प्रॉब्लम आ रही थी आपके पंजाब के अंदर भी आ रही थी, ऐसा प्रॉब्लम आपका बॉम्बे के अंदर भी आ रहा था जो बॉम्बे प्रोविंस है। सिंस बॉम्बे प्रोविंस कंप्राइज्ड ऑफ गुजरात, बॉम्बे, कर्नाटका, विदर्भा, वहां भी ये प्रॉब्लम आ रही थी। So this was also one of the very difficult task. और इसीलिए the State Reorganization Commission was formed. The main aim of the State Reorganization Commission was to identify the areas and also to recommend ki how these differences can be
debt. The State Reorganization Commission, उन्होंने जो है अपने जो उनके recommendation थे, they submitted that the states should be carved out of all the states, either for the language or along the culture. So 14 आपके जो states and 6 union territories थे, वो सबसे पहले हमारे जो है फॉर्म हुए थे. The problem was somewhere in Punjab and हिमाचल, क्योंकि पंजाब और हिमाचल उस वक्त में एक था, उनको अलग कर दिया. लेकिन पंजाब और हरियाणा की प्रॉब्लम थी जो आज भी है. आपने जो एंड में पढ़ा था द रीसेंट डेवलपमेंट, उससे पहले वाले रीजनल एस्पिरेशन में आपने पढ़ा था. द प्रॉब्लम इज स्टिल परसिस्टिंग बिकॉज चंडीगढ़ इज स्टिल द कॉमन कैपिटल. इवन अगर हम कहें 29th आपका जो स्टेट है तेलंगाना, उसको भी अपना जो है इट हैज गॉट इट्स कैपिटल. तो सच प्रॉब्लम्स वर देयर. सिमिलरली आपका जो बॉम्बे था, जहां एक तरफ आपके गुजरातीस हैं और दूसरी तरफ आपके महाराष्ट्रियंस. So it was also bifurcated into 2 states at that time. And under the accession of merger agreement के अंडर जो है मणिपुर हमारा एक हो गया था. So all the challenges that were there, that is the first challenge हमारा था to ensure a shape up the nation, उसको करने की कोशिश की. Though there were problems in the later stages also, like Tamil Nadu के अंदर, but that was not for the shaping, that was for the how to deal with federalism. Whereas democracy हम लोगों ने शुरू से ही establish किया था. In 1950 we also had our first elections, though they were not that much, उस वक्त में it was not, but we had done. And development के लिए the cabinet of Pandit Nehru had taken appropriate steps, like we had adopted the 5-year plans. हमारा planning के according चल रहा था. And for the society के लिए, जो well-being of society के लिए different kinds of state reorganization करके अलग किया गया. And of course the developmental programs were introduced. Many of the IITs, IIM, देन अगर हम कहते हैं विक्रम साराभाई, जो आपका विक्रम साराभाई आपका इंस्टीट्यूट, they all were developed during that period only, which ensured development. The making or the structures, infrastructural development, dams, constructions of dams, that helped in the agricultural section. Bhakra Nangal Dam was the first, which was inaugurated by Pandit Nehru. तो वो आपके जो है वो steps लिए गए थे for the development in other fields. So thus the first chapter deals with what were the challenges that came in front of the political leaders, क्योंकि उस वक्त में the nation was not facing the other problems. हमारे लिए प्रॉब्लम था अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे लिए प्रॉब्लम थी पोवर्टी, हमारे लिए प्रॉब्लम थी इलिटरेसी, हमारे लिए प्रॉब्लम थी पार्टीशन एंड डिस्प्लेसमेंट. that were the problems. हमारे लिए आज problems are different, and all these had already been there in the mission of the people who had fought for us. National leaders को ये बहुत अच्छे से पता था. So on the very first eve only, Nehru ji had put his उन्होंने जो है already अपने aims को बता दिया था. That is how to tryst with the destiny. Then in the second question that you may get is the challenges. आया हुआ है पेपर में. It has come in the 2 marker also and 4 marker also. So if it comes in the 2 marker, you just have to mention. But if it comes in the 4 marker, you need to explain it. Then what were the process that partition took place? Yeah, who advanced the 2 nation theory? Yeah, under which theory was
इंडिया डिवाइडेड इनटू 2 नेशंस, ये वाला आपका। देन व्हाट, मतलब जो ये वाला सारा, देन व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन? 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर, तीनों में आ सकता है। देन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कब आपका कमीशन कब बना था? हु वॉज पुट्टी श्रीरामुलु? ये आपके सारे 1-1 मार्कर है। दीज आर ऑल द 1-1 मार्कर आपके क्वेश्चंस। देन यू मे हैव द मैप क्वेश्चन, आउट ऑफ विच स्टेट वॉज दिस स्कार्फ? लाइक आपका आंध्रा जो है वो मद्रास प्रोविंस से आया था। दिस इज द चैप्टर व्हाट वी कॉल एज challenges to nation building.